Dr. Bijendra, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Director, sir, with Sure. your kind permission, shall we start? Sure, Dinesh, you can start now. Yeah, please. Anshuman, please start the proceeding. Yes, sir, definitely. A very good morning to our honored guest today, Dr. Vijender Singh Sankla, sir, Director, sir, Yogananda College of Engineering and Technology, Head of Department of Computer Science, Engineering and IT Department, and all the faculty members and students of Yogananda College of Engineering and Technology. It is a great pleasure indeed for me to welcome you all to the online session on entrepreneurship organized by the CSE and IT Department of Yogananda College of Engineering and Technology under the guidance of Head of Department Engineer Dinesh Gupta sir, also the President of IIC Cell of YCET. I would like to say a few words about the YCET that the college was established in 2013. It has been approved by the All India Council of Technical Education for conduct of full-time 4 years bachelor's program. The college is also recognized by the J&K state and affiliated to the University of Jammu. If we talk about the Department of Computer Science and Engineering, we have an intake capacity of 120 students and we are already running 4 different semesters. So now I request Head of Department of Computer Science and Engineering and IT Department to say few words for our guest today. Engineer Dinesh Gupta, sir. Thank you, Anshuman. Am I audible? Yes, sir. Your voice is clear. Thank you once again. Worthy Director of YCT. No, sir. Robin, sir, you are not audible. Sir, your voice is not audible, Dinesh, sir. Dinesh, sir, your voice is not audible. Hello. दिनेश, थोड़ी आप अपनी माइक वगैरह को देख लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, Anshuman, is it audible now? Yes, sir. Now it is clear. It is clear. Thank you. Buddy Director, Professor Dr. Anup Kumar Srivastava, today's speaker, Dr. Bijender Singh Sankla, Teacher in charge, Engineer Robin Kumar, Student Coordinator, Akshit Verma, faculty members, and my dear students. Good morning to all of you. I, Dinesh Gupta, Head of Department, Computer Engineering and IT of Yogananda College of Engineering and Technology, and also the President of IIC Cell of YCT, feel honored and privileged to welcome today's speaker, Dr. Bijender Singh Sankla. Presently, he is working as Associate Professor and IIC Ambassador at Gitanjali Institute of Technical Studies. He has more than 12 years of teaching experience. He has published more than 25 publications in his name in various science, direct, Scopus, and international journals. He has done his PhD in renewable energy engineering from MPUAT Udaipur, which is best university in North India in the field of renewable energy engineering. He has done his PhD work on biogas powered refrigeration system. He is now working as Vice Head and MTech Coordinator in the Department of Mechanical Engineering. He has guided more than 50 projects to the BTech students. Now, I would like to welcome our
Director, Professor Dr. Anup Kumar Srivastava, Engineer Robin, Teacher Coordinator, faculty members, and my dear students. Thank you, Anshuman, and over to you. Thank you very much, Dinesh sir. Now I request Director Sir, Professor Dr. Anup Kumar Srivastava sir to say few words for our guest today. Okay, thank you, Anshuman. Anshuman, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. Thank you. Respected Dr. Vijendra Singh Sankla, Head of the Department, Engineer Dinesh Gupta, faculty members of the Computer Science and IT Department, and my dear students. A very, very good morning to all of you. First of all, I would like to welcome today our key speaker of the webinar, Dr. Vijendra Singh Sankla, who is Associate Professor in Mechanical Engineering Department, Gitanjali Institute of Technical Studies, Dabok, Udaipur. Also, I would like to welcome the HOD, Mr. Dinesh Gupta, all the faculty members, and my dear students. I would like to say on this occasion, one important thing, particularly to all our students, that we have been conducting webinars on the different topics, for example, like entrepreneurship, Atmanirbhar, national education policy, etc., etc. My request to all the students is that kindly do not consider it as a part of the curriculum that we are conducting these kind of the webinars. Rather, what I would like to say to the students that the topics which we are trying to cover in the different kinds of the webinar, you have to take in spirit. I know that, the today's talk on entrepreneurship, in this particular talk, I mean, it is not a very easy task for any student to take a decision whether he should go for the government job or private job, or he should start his own industry. But my idea is that one should definitely start thinking in this particular direction. So today's talk by Dr. Vijendra Singh Sankla on the entrepreneurship, I think would definitely throw light to the students that how to start their own enterprise, how to start their own businesses, what are the kind of the difficulties probably which a student will get while running the organizations, and many of the things related to the entrepreneurship. So I would request all the students to take all the points which is being said. And I'm sure that even Dr. Vijay Singh also would like to give some examples of some of the people probably who have started their own business. So this kind of the seminar will be really very, very useful to all the students. I wish all the best to the speaker as well as the students for having a nice webinar on entrepreneurship. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Director Sir, for your words. Now I request our guest today, Dr. Vijendra Singh Sankla sir, to please start the session on entrepreneurship. Thank you, Anshuman sir. Firstly, I would like to thank you, Dr. Anup Kumar Srivastava, Director, Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu and Kashmir. Also thank you, Dr. Dinesh Gupta, HOD CSE and Vice President of IIC Cell, for giving me this opportunity, giving the opportunity for seminar on entrepreneurship. I also thank to Engineer Robin Gupta, Student Coordinator Akshmit Verma, okay, for supporting and coordinate this type of workshop. First,
Thank you for introducing me in such a nice manner. I think this is my a little bit academic introduction, but I want to introduce myself as an entrepreneurship introduction. Because can I speak in both the language? The students are comfortable in both the languages. Yes, sir. Comfortable. ओके जो आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है एज एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो तो मैं हुई, लेकिन इसके साथ ही मैं एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी हूँ। ठीक है, तो 2016 में मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी, वो थी एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटी। लेकिन 2016 में जब नोटबंदी हो गई, ठीक है, उस दौरान मुझे कुछ लॉस हुआ। तो जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप में मुझे कुछ लॉस हुआ, तो उसको मुझे वाइंड अप करना पड़ा। देन उसको फुलफिल करने के लिए, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए देन 2019 में मैंने एक और ग्रोथ रिलेटेड एक एप्लीकेशन और वेबसाइट जनरेट करी, और वो अभी रनिंग कंडीशन में है, और उस पर भी मुझे लग रहा है कि कुछ कमियां हैं। तो आज का जो मेरा वर्कशॉप रहेगा वो उसी से रिलेटेड रहेगा कि हमें कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने 2016 में कुछ स्टार्ट किया था, देन 2019 में कुछ स्टार्ट किया था पैरेलली, जॉब के साथ पैरेलली। तो मुझे क्या क्या हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल्स को दूर करने के लिए क्या हमें प्रोसेस करनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा 1-to-1 सेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बोलता रहूं और आप सुनते रहें, ऐसा नहीं है। मुझे सभी का एंटरटेनमेंट चाहिएगा। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो भी इस एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए भी है, ठीक है, सभी के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन जो होती है, सेटिंग अप द बिजनेस विद एम टू मेक प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी। हमें कैसे भी करके मनी कमाना है, ठीक है। एक बिजनेस को सेट करके, एक प्रोडक्ट बना के, इस प्रोडक्ट को सेल करके, ठीक है, हमें कैसे भी करके पैसा बनाना है डिफरेंट मशीनरी यूज करके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नए नए आइडिया, नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे। आपको मनी वाइज और टाइम वाइज आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, और आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए जिस फील्ड में आप उतरना चाहते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कौन करेगा, एक एंटरप्रेन्योर करेगा। एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन है जो रिस्क लेता है, ठीक है, जो बिजनेस सेट करने के लिए रिस्क लेता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क लेता है, ठीक है। तो उसी के अंदर इनोवेशन वाला आइडिया आएंगे, उसी के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी, और उसी के अंदर स्किल्स होगी, और उसी को उस बिजनेस को करने के लिए, उस एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करने के लिए उसको अपने अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी और कुछ स्किल्स डेवलप करना पड़ेगी, या फिर कुछ स्किल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा, जो स्किल्स लोग हैं उनसे मिलना पड़ेगा, ठीक है। और एक और मैं बात बताऊं, सबसे बढ़िया बात है कि आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। कोई भी जॉब करते हैं, जॉब में आपको क्या है कि सिर्फ 9 से 4 या 9 से 5 आपको जॉब करनी है, उसमें आपको जो भी बॉस के द्वारा असाइन किया वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई आसान टास्क नहीं है। जनरली हर जो कैंडिडेट है या फिर स्टूडेंट्स है, वो चाहता है कि मैं आगे अपना कोई बिजनेस खोलूं या फिर सेटअप बिजनेस को एक्सपांड करूं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। 9 to 5 की जॉब आसान है, क्योंकि वहां पे आपको बॉस के द्वारा असाइन वर्क करना है। अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी, तो आप कुछ अलग से कुछ करना चाहोगे, लेकिन मैक्सिमम की थिंकिंग क्या रहती है, 9 से 4 की नौकरी करना है, 9 से 5 की नौकरी करना है, बॉस ने असाइन किया वो काम करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको 24 घंटे अपने बिजनेस के लिए सोचते रहना है, ठीक है। हर दिन आपको कुछ नया आइडिया सोचना है उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, उस बिजनेस को करने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप इनिशियल लेवल पे टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मेरे में इतना ही पोटेंशियल है कि मैं 9 से 5 की जॉब कर सकता हूँ, या फिर मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं पूरी लाइफ टाइम उस बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए मैं पूरी तरह से उसको टाइम दूं, पूरी तरह से लगन से उसमें मेहनत करूं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इसके बाद
जनरली जो आज का मेरा जो सेशन चलेगा उसमें हम देखेंगे कि डिजाइन थिंकिंग इनोवेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं एम्बेसडर हूँ डिजाइन थिंकिंग इनोवेशन का आईआईसी गिट्स की तरफ से। तो उसी पे हम कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ एक नोटपैड होना चाहिए आपके पास, पेन पेंसिल सब अपने पास रखें। कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, 1-to-1 सेशन होगा और मैं चाहूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से इंटरेक्ट हो। हम ग्रुप्स बनाएंगे, इन ग्रुप्स के साथ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपने इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम तो सुना होगा, धीरू भाई अंबानी, जो उनका सन है मुकेश अंबानी, ठीक है, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, इन सब बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम तो सुना होगा। ये सब तो अपना वेल सेटल्ड बिजनेस है इनका। इन्होंने बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया और बहुत मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा और आज भी उसी लगन से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा यहाँ पे आपको। मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा ये, और इसी के साथ आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई का जो सीईओ ऑफ गूगल है। इसके साथ आपने नाम सुना होगा सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। इसके साथ आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद आपने नाम सुना होगा शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है। ये सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? सेलिब्रिटी का कोई इन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ जो है कोई प्रोडक्ट को सेल करना या कोई प्रोडक्ट बनाना या प्रोग्रामिंग बनाना नहीं है। एंटरप्रेन्योर, ये भी एक एंटरप्रेन्योर। सुंदर पिचाई ने इतनी स्किल डेवलप करी कि वो आज गूगल का सीईओ है। सत्य नडेला इतनी स्किल डेवलप करी कि वो उसकी हर छोटे से शहर का आदमी सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को जानता है। शाहरुख खान, मैं, MS धोनी, इन सबको कौन जानता है? ठीक है। इन्होंने क्या किया? अपनी स्किल बढ़े, अपनी स्किल के दम पे ये एंटरप्रेन्योर बने। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करके एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप जो है अपनी स्किल को डेवलप करके, आप जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में बहुत अच्छा करके, ठीक है, आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि MS धोनी आज करोड़पति है। क्यों है? क्योंकि उसने, उसकी स्किल थी क्रिकेट में, एज ए कैप्टनसी, एज ए विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन, उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो आज उसको करोड़ों के एड्स मिलते हैं। शाहरुख खान को डायरेक्टर बोलता है कि इस तरह से डांस करना है, इस तरह से हाथ हिलाना है, इस तरह से डायलॉग बोलना है, उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्किल के दम पे, ठीक है, अपना एक नाम बनाया, उस नाम पे ये पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट को बनाने से ही आप जो है एक एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। अपनी ब्रांड बनाओ, है ना, अपनी पहचान बनाओ, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्किल के दम पे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। तो आज हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको आप 2 मिनट के लिए आप उनके लिए सोचें या फिर ओम का उच्चारण कीजिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए सबसे रिक्वेस्ट है सेशन स्टार्ट करने से पहले। ओके, थैंक यू। ये एक थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी थी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस की स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले जो मेरी पहली स्लाइड है, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या फिर आपको कोई भी स्किल डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको थॉट्स माइंड में आने चाहिए। जब तक थॉट्स नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं ला सकते, कुछ भी फिजिबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक इनोवेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि एक जो बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? आप लोगों में से कोई आंसर देगा? एनीबॉडी? बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था?
Students, so please unmute anyone who want. चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं. So each and everyone can mute or unmute themselves. सभी सुन पा रहे हैं सर? Am I audible? Yes, sir, Yes, you sir. are very much audible, sir. ओके. तो एक्चुअली सर रॉबिन सर 1-to-1 सेशन है, इसलिए सबको जो है आप जो एडमिन वाली जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा डिसेबल कर दीजिए. ठीक है, थैंक यू सर. तो बल्ब का इन्वेंशन जो किया था, यस, जो बल्ब का इन्वेंशन जो किया था वो थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन उसको इन्वेंशन करने के लिए उसने कितने टाइम्स उसका प्रैक्टिकल किया आपको पता है? 100 टाइम्स. उसने एक बार इन्वेंशन करके या 20 बार उसका इन्वेंशन करके या 50 बार इन्वेंशन करके नहीं किया, वो 100 बार उसने उसका इन्वेंशन किया, जब जाकर उसको सक्सेस मिली. ठीक है, अगर वो किसी भी एक मोमेंट पे 50 बार पे या 60 बार पे वो अगर रुक जाता कि मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो आज जो है बल्ब का इन्वेंशन नहीं हो पाता. ठीक है, तो उसने 100 अटेम्प्ट मारे तब जाके बल्ब का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले आगे मैं जैसे चलूंगा कि कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आप तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है. जो तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायबिलिटी होनी चाहिए, डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए और फिजिबिलिटी होनी चाहिए. अब वायबिलिटी और डिजायरेबिलिटी का मीनिंग क्या है? वायबिलिटी का मीनिंग है व्यवहारिकता. वो चीज आपके आसपास जरूरत है या नहीं, उसको कर सकते हैं या नहीं, आपको उस चीज को करने की एबिलिटी है या नहीं, उस चीज को लेके आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं. ठीक है. दूसरी चीज होती है डिजायरेबिलिटी. कुछ भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वायबिलिटी के साथ डिजायरेबिलिटी होना चाहिए. वो डिजायरेबल है या नहीं. एबिलिटी टू जनरेट डिमांड मीन्स वो उसकी डिमांड है या उसकी डिमांड ही नहीं है और आप उसको इन्वेंशन करके रख दोगे, उसको कौन खरीदेगा? ठीक है, तो सबसे आपको मार्केट में रिसर्च करना है कि वो वायबल है या नहीं, वो डिजायरेबल है या नहीं. देन फिजिबल का मतलब है कि आप वो मार्केट में उसकी डिमांड भी है और आप उसके ऊपर वर्क भी करना चाहते हो, लेकिन वो इस तरह से इतना डिफिकल्ट टास्क है कि वो फिजिबल ही नहीं है. उसका प्रोटोटाइप भी नहीं बन सकता है, उसका एंड यूजर तक प्रोडक्ट कब पहुंचेगा. तो फिजिबल भी है या नहीं, कन्वीनियंट है या नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो जो कोई भी इन्वेंशन है या भी कुछ भी आप एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो वायबिलिटी, डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, ये तीन चीजें उसके साथ होनी चाहिए. अब ये तीनों चीजें आने के लिए आपके पास आएगा कैसे? आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है या कुछ इन्वेंशन करना है, तो सबसे पहले आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप सुनोगे, उसको हेयर करोगे, फिर क्रिएट करोगे, फिर उसको डिलीवर करोगे. हेयर करना मीन्स आसपास आपके कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो आपने उस प्रॉब्लम को कहाँ सुना? आसपास से सुना, अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने साथ कलीग से. ठीक है, अपनी दूसरी सोसाइटी से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड सर्कल से. तो उसको सुना आपने, फिर उस पर सुना और उस पर जोड़ दिया, एम्पैथाइज किया, उस पर जोड़ लगाया कि ये क्या चीज, ये प्रॉब्लम एक्चुअली जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है. फिर उस प्रॉब्लम को आपने उस पर जोड़ लगाया, फिर जोड़ लगाने के बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया मतलब समझा कि वाकई में यहाँ ये कोई प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे, समझा, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है. ठीक है, डिफाइन किया मीन्स ये प्रॉब्लम जो है वाकई में ये वाली प्रॉब्लम है और इसको मैं इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ. जैसे थॉमस एडिसन ने अंधेरे उसने कैसे सोचा होगा? उसने ऐसे सोचा होगा कि यार दिन में तो चलो
जो है सनलाइट रहती है, लेकिन लाइट रात में क्या ऑप्शन नहीं। पहले क्या कैंडल चलते थे, दिया चलता था, उससे जो है रोशनी मिलती थी। लेकिन इसी क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जनरेट किया जाए, तो ये प्रॉब्लम उसको कैसे पता पड़ी? अंधेरे से, है ना। अंधेरा आता ही नहीं तो बल्ब का इन्वेंशन होता ही नहीं। ठीक है, तो ये उसने अंडरस्टैंड करी और उस बल्ब को उसने बनाया। ठीक है, फिर उसने उसको क्रिएट किया। क्रिएट किया मीन्स एक प्रोटोटाइप बनाया। मैंने क्या बोला कि उसने 100 बार उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने 100 बार प्रोटोटाइप बनाया, उसके नए नए आइडियाज जनरेट किए उसमें, है ना। बहुत बार उसको उसने एक्सपेरिमेंट किया, 100 बार उसने, 100 बार से भी ज्यादा किया होगा। 100 बार तो उसके स्टेटमेंट में लिखा होगा कि 100 बार किया होगा, लेकिन 100 बार से भी उसने ज्यादा किया होगा, उसका प्रोटोटाइप बनाया होगा। अगर प्रोटोटाइप ही सक्सेसफुल नहीं है तो फिर हम आगे नहीं जाते। प्रोटोटाइप को भी हमें सक्सेसफुल करना है। उसके बाद हमने उसकी डिलीवरी करी। डिलीवरी करना इट मीन्स उसको फिजिबल किया, है ना, उसको एंड यूजर तक पहुंचाया, उसको फैब्रिकेशन किया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी। उसका पूरी तरह से फैब्रिकेट किया। और एंड यूजर मीन्स एक पर्टिकुलर एंड यूजर मीन्स हम लोग जो नॉर्मल जो है कॉमन पर्सन है, उस कॉमन पर्सन तक उसको पहुंचाया। ठीक है, अगर ये चीजें, तीनों चीजें होती है तो ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन पाता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाता है। और उसकी रेगुलर डिमांड बढ़ानी पड़ती है, इस पर रेगुलर काम करना पड़ता है, उस पर रेगुलर इनोवेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना के छोड़ दिया, लेकिन उसमें कंटिन्यूस इंप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। ये है डिलीवरी। ठीक है, कस्टमर की डिमांड के ऊपर और कंटिन्यूस में इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, ये डिलीवरी प्रोसेस है। हियर क्रिएट एंड डिलीवर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होती है। ठीक है, अब इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या थॉट्स रखनी पड़ती है? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये सब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सत्य है। ये कोई बहुत बड़ी चीज, ये कोई भगवान ने क्रिएट नहीं करती। कोई एंटरप्रेन्योरशिप बन गया तो उसको भगवान ने अलग से नहीं भेजा है। ठीक है, कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी बन गया है, ठीक है, कोई एक्टर बन गया या फिर कोई क्रिकेटर बन गया, तो भगवान ने सभी को एक जैसा ह्यूमन बीइंग यहाँ पे बनाया है। ठीक है, उसने आसपास की ऑब्जर्वेशन ली, उसने अपने अंदर की स्किल्स क्या है वो बाहर निकाली, और वो उसको स्किल पे काम किया, और वो देन सक्सेस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमें आसपास के पीपल की नीड क्या है, उस नीड तक जाना है। और जो भी वो पीपल है, ठीक है, जो भी लोग हैं, उन लोगों की लाइक और डिसलाइक के ऊपर काम करना है। फिर उन लाइक और डिसलाइक के बाद उनकी लाइकिंग ढूंढनी, लाइकिंग ढूंढने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाना है, उसको पैकेज करना है, उसकी मार्केटिंग करना है, और उसको फाइनली उसको सेल करना है। ये एम रहता है एंटरप्रेन्योर का जनरली। ठीक है, और ये एम एक पर्टिकुलर पर्सन का भी रहता है जो अपनी एक खुद की स्किल डेवलप करके अपने एक ब्रांड बनाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे। तो आगे मैं एक सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी लेना चाहता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रोबिन सर, आर यू देयर? अंशुमन Yes, सर, sir. अंशुमन सर, Yes, sir. ठीक है। तो अब मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ स्टूडेंट से। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ जो है कुछ जो एसेसरीज है कुछ रखनी है आपको, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो आपके पास पेन पेंसिल कुछ होगा। तो एक कुछ 5 मिनट की एक्टिविटी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, सब स्टूडेंट सुन पा रहे हैं सर? Yes, sir, it is audible. तो स्टूडेंट्स और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहले, आप सब लोग वॉलेट यूज करते हैं, लेडीज वॉलेट भी होता है, और कुछ फीमेल है तो वो लेडीज वॉलेट यूज कर सकती है, तो कुछ जेंट्स है तो जेंट्स वॉलेट यूज करते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक डिजाइन बनानी है सभी को। अब मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, ये एक एक्टिविटी है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है आप लोगों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को एक पेपर पे एक ऐसा वॉलेट बनाना है जो कि बिल्कुल आइडियल हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक बना ही नहीं हो, ऐसा एक वॉलेट बनाना है। ठीक है, तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा वॉलेट बनाना है। 2 मिनट है उसके लिए, आपके लिए एक ऐसा वॉलेट बनाना है जो बिल्कुल आइडियल हो, और ऐसा वॉलेट अभी तक बना ही नहीं हो, जेंट्स लेडीज किसी भी तरह का। अंशुमन सर, आर यू देयर? Yes, sir. कोई भी स्टूडेंट Yes, sir, I am here. इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो इंटरेक्ट कर सकता है सर।
ओपन सेशन है। Okay. Any student in the who are present today want to interact, they can interact meanwhile. किसी भी स्टूडेंट को इंटरेक्ट करना है वो इंटरेक्ट कर सकता है। आपको Anyone? 2 मिनट लेना है, स्टूडेंट्स को 2 मिनट में एक आइडियल वॉलेट बनाना है जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। स्टूडेंट्स प्लीज इंटरेक्ट विद मी, एनीवन। Students can unmute themselves. स्टूडेंट आप अनम्यूट कर सकते हो, आप पहले अनम्यूट करो फिर इंटरेक्ट करो। माइक को अनम्यूट करो पहले। कोई हेलो सर। हाँ सर, सर आप भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो 2 मिनट में आपको एक आइडियल वॉलेट बनाना है, ठीक है। और कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेडीज जेंट्स, ठीक है। और उस वॉलेट की 2 मिनट हो गए हैं लगभग। स्टूडेंट्स जितेंद्र मेनारिया, यस सर। आपने सर व्हाट इज वॉलेट सर? पर्स बनाना है। अच्छा, वॉलेट। हाँ वॉलेट। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो सर। और कोई स्टूडेंट्स? एक आपको पर्स बनाना है, 2 मिनट अपनी डिजाइन बनानी है उसमें, ठीक है। कोई भी शेयर कर सकता है अपनी डिजाइन। जितेंद्र मेनारिया, सिद्धार्थ, आशिक हुसैन, अक्षमित वर्मा, आशिक हुसैन, हेलो, आप सुन पा रहे हो? ठीक है। आप जितेंद्र, डिड यू कंप्लीटेड? हेलो sir, you are audible, but students will take some more time. Okay. The students are doing or not, sir? Just I want to just Yes, sir. students are doing or not? Jitendra? Yes sir, we are doing sir. Sir, they are doing. Sir, they are drawing, but they will take some time more. Okay. आपको उसमें आप सुन पा रहे हैं सब? आपको एक आइडियल वॉलेट बनाना है जिसके में रिक्वायरमेंट है, और उसके फीचर्स भी आपको साथ में लिखने हैं। फिर 1 बाय 1 जो भी स्टूडेंट जो है, 3-4 स्टूडेंट रैंडमली मैं लूंगा, उन स्टूडेंट से उनके फीचर्स पूछूंगा और वो अपनी स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं कि हमारी जो आइडियल वॉलेट है वो इस तरह से। हमें वॉलेट में क्या रिक्वायरमेंट होती है? पैसा कहाँ रखना है, एटीएम कार्ड कहाँ रखना है, ठीक है। हमें जो विजिटिंग कार्ड कहाँ रखना है, हमें जो है कॉइन्स कहाँ रखने हैं, हमें नोट्स कहाँ रखने हैं, ठीक है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखने हैं, ठीक है। हमें हमारा फोटोग्राफ्स कहाँ रखना है, हमारा आईडी कार्ड कहाँ रखना है, उसके लिए कैसा स्पेस होना चाहिए,
उसके लिए क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए। अगर आपका पर्स कहीं चोरी हो जाता तो सिक्योरिटी पॉइंट, एक कुछ फीचर्स है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप वॉलेट भूले नहीं कहीं, ठीक है, कहीं आपने निकाला और निकाल के रख दिया, कहीं भूले नहीं, उसके लिए क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से है। तो मैं इस एक्टिविटी को क्लोज करना चाहूंगा सर। तो कुछ कोई भी एक या दो स्टूडेंट मुझसे शेयर कर ले उनके ड्राइंग और उनके फीचर्स, फिर मैं आज नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ता हूँ। जितेंद्र, अंशुमन सर, कोई भी एक या दो स्टूडेंट मुझसे शेयर कर ले। जिस भी स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुकी है डायग्राम, अपना पहले माइक अनम्यूट करो और फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करो। जितेंद्र, माइक अनम्यूट करना। यस सर। किसी भी स्टूडेंट का, हाँ आपका कंप्लीट हो हाँ, गया। जितना भी जितेंद्र बन गया है, जितेंद्र आप जितना भी आपका बन गया है आप मुझसे शेयर करो, आपने क्या सोचा है उसके बारे में। हाँ। जस्ट शेयर टू मी। सर ड्रॉ अभी पूरा नहीं किया है। ओके, जितना भी किया है आप शेयर कर लो, हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते जितना हैं। भी है आप स्क्रीन शेयर कर दो। और कोई कैंडिडेट ने कंप्लीट की है वो शेयर कर सकता है स्क्रीन, कोई भी कैंडिडेट। हाँ हाँ जितेंद्र, आप आपका एक्सप्लेन कर दो इसको, कैसे क्या किया आपने इसको। सर ये वैसे फोल्डेबल होगा सर। अच्छा और सर ऊपर से इसका वो बटन रहेगा बंद करने का। जी। बाहर सर इसका वो कार्ड रहेगा जिसमें अपना डिटेल होगा पर्सनल्स, अगर कहीं गुम हो जाए तो, अच्छा है ना सर। और इसके साइड में सर कॉइन रखने का होगा एक तरफ, और एक तरफ कार्ड्स, मोबाइल। और अंदर अंदर सब पेपर्स और मनी रखने का है। क्या है, आपने क्या यूनिकनेस इसमें बताई है? सर इसमें एक तो बाहर है सर वो आइडेंटिटी कार्ड रखने का सर, आपने इसमें डिटेल्स। यूनिकनेस क्या बताई है, मतलब अभी तक जो आपने। सर इसमें वो बाहर है सर पर्सनल डिटेल। इट्स गुड ट्राई। और कोई शेयर करना चाहता है? थैंक यू जितेंद्र। और कोई शेयर करना चाहता है? अंशुमन सर, एनीवन? Any student who wants to share their screen of what they had made. छत्रपति शौकत, आपने करना है? एक्टिविटी पे चलते हैं। यस सर। किसने किया है करना सर? आपने शेयर? सर ये कर रखा है। We are watching you. You just share it. क्या आपने शेयर छत्रपति? जी सर ये कर रखा है। हाँ करो शेयर आप। आपका शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है ग्रीन कलर के सिंबल में, राइट। तो व्हाट यू हैड मेड, यू जस्ट एक्सप्लेन इट। ये इसमें पॉकेट और लॉक का है सर सिस्टम। हाँ एक्सप्लेन करो सर को। इसमें ये पॉकेट का भी है और ये इसमें सिक्योरिटी के हिसाब से एक लॉक भी रखा है, और इसमें दो वो कवर है इसमें अलग अलग, एक बड़ा वाला है और एक छोटा। और ये साइड में कोई अलग एक्सेसरीज के लिए है, एक बोतल वगैरह है सब। सर ये जो लास्ट में साइड में इसमें फोन रखने का हो सकता है। छत्रपल, हाँ इसमें जो ये साइड से जो निकल रहा है, ये नहीं ये बाहर ये नीचे, हाँ ये नीचे साइड चला जाएगा। हाँ
और ये ऊपर एक और स्पेस है और अंदर अंदर और बड़ी स्पेस है। हाँ, ये दो अलग अलग है, हम्म। ये अलग कवर का है और ये अलग। Vijender sir has left. He's just joining now. Wait for some time. ओके। 1 मिनट वेट कर लो आप। छत्रपाल आप बताइए आपने क्या बनाया है? हाँ छत्रपाल, नाउ यू कैन जी। एक्सप्लेन। जी सर, ये पर्स लाइक बैग है, जैसे कि इसमें दो अलग अलग पॉकेट्स हैं। हेलो। हेलो हेलो यस सर। छत्रपाल बोलिए। यस यस सर। वेट छत्रपाल, लेट विजेंद्र सर Yes. join. Yes, sir. Yeah, I joined. यस सर। Sir has joined. Yes, sir. You just start. ये Okay. सर, You just start. ये सर एक बैग है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक लॉक भी है, और बाकी छोटे ऐसे एटीएम कार्ड वगैरह लाइक ये यहाँ हो जाएंगे, और बाकी दो अलग अलग पॉकेट्स है उस हिसाब Okay, okay, okay. से। यस सर। Thank you, thank you. और next one is, तो स्क्रीन उल्टी शेयर करिए। एक और किसने किया है? अकीब, आप अपनी स्क्रीन को Right. आप बिल्कुल टिल्ट शो कर रहे हो। Anybody more wants to share their screen? Any student? Yes, sir. Who is Maheen. she? Maheen, Mahi. आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. You just share your screen. सर कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा है तो मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कोई और screen फीचर्स share कोई नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो उसके फीचर्स बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या फीचर्स हैं आपके? सर मैंने एक गर्ल्स वॉलेट बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उसमें मैंने अंदर सेगमेंट्स रखे हैं जिसमें एक जिप वाला है और 3 है जिसमें हम जिप वाले में हम अपने कार्ड्स रख सकते हैं, बाकी जो इसमें कैश वगैरह रख सकते हैं, और बाहर मैंने उसको एक और पॉकेट रखा है जिसमें हम अपना फ़ोन नंबर रख सकते हैं, ताकि अगर वॉलेट गुम हो जाए तो जो उठाए वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। May I ask something, sir? यस यस सर एक्चुअली बात यह है कि जब हमें अपना वॉलेट होता है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस जहाँ पर भी जाते हैं, तो अक्सर हमारे जो वॉलेट्स होते हैं या वॉलेट होता है वो गुम जाता है। तो उसकी वजह से हम जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो सर वो गुम ही जाता है, वो कभी फिर मिलता भी नहीं है। तो इसके हिसाब से हम अगर जीपीएस बेस्ड वॉलेट बनाएंगे सर, जी जी, जो कि सर बहुत ही अच्छा रहेगा, जो हम उसके लिए हमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी होगी जो उसे कनेक्ट हो जाएगा उससे सर। जी 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 जी, तो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो। जी सर, उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं थ्रू मैप। और सर और एक बात है, अगर हमें वो वॉलेट 5 मीटर की दूरी पे वो घूम जाता है, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं किसी गाड़ी में जाता हूँ, तो मैं जैसे गाड़ी से नीचे जाता हूँ, अगर मुझे गाड़ी में ही वॉलेट घूम जाता है तो 5 मीटर की दूरी पे वो मुझे बीप करेगा और फोन भी मुझे रिंग करेगा कि आपका जो वॉलेट है वो कहीं वो यहाँ पे नहीं है आपका, मतलब 5 मीटर की दूरी पे वो बीप करेगा सर। तो ये आपका एक मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है। आप अगर आप इस पे काम करो तो आप जैसे सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा एक टास्क हो सकता है ये, है ना, एक अच्छा सा। इसकी वजह से क्या होगा सर, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते हैं तो वो सारा दूर हो जाएगा सर, और जो भी हमें किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा थ्रू इंटरनेट कि हम मुझे वैलेट घूम गया। कि मेनली सर मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ पे मेनली सबसे ज्यादा हर दिन इंटरनेट पे यही पोस्ट होते हैं कि मेरा वैलेट घूम गया, उधर हो गया, इधर हो गया। तो सर क्यों ना हम ऐसे बेस्ड बनाए जीपीएस बेस्ड वैलेट,
कि किसी को बोलना भी नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगा किसी को बोलना, खुद हम कर सकते हैं सर। हमें किसी से बोलना पड़ेगा थ्रू इंटरनेट, थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, हम खुद कर सकते हैं सर। बिल्कुल, वेरी ऐसा गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आप इसको चाहो तो अपने मेजर माइनर प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हो, जो आपके करिकुलम में है, तो आप इस पे काम करोगे? यस सर, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, आपका ग्रुप बनाओ, उस पे काम करो। मैं यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छा, अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल, थैंक यू। थैंक यू। मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में बढ़ता हूँ। एक्चुअली आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, मेरा आज आपके अंदर क्या चल रहा है वो निकालना है, ठीक है। अभी मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते चले जाएंगे, आप चले जाओगे, लेकिन मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा आपसे इंटरेक्ट करूँ तो मैं आपके अंदर कुछ आपके थॉट से वो बाहर निकलना चाहता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं जाता हूँ कि आपको एक पोएम लिखनी है, ठीक है। आपको एक पोएम लिखनी है, ठीक है। पोएम नहीं लिखना आती है तो भी एक पोएम लिखने के लिए ट्राई करना है। जिनको लिखना आती है वो तो बहुत बढ़िया है। उसकी जो कंटेंट्स है, मैं आपको कंटेंट्स आपको शो कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड होम, ठीक है। ये कंटेंट उसमें आने चाहिए। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड होम। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फ्रेंड। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फैमिली। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब साउंड अराउंड योर होम, है ना। I am from where, describe sights around your home. I am from where, describe smells around your home. Okay, describe the best moment in your life. Describe best moment in life. ये सब कंटेंट जो है उस पोएम के अंदर आना चाहिए। तो मैं आपको देता हूँ सिर्फ 4 से 5 मिनट, ठीक है। उस 4 से 5 मिनट में ये 5 लाइन की आपको पोएम बनानी है जिसमें सब कंटेंट इंक्लूड हो, और जो भी जल्दी से जल्दी लिख के शेयर कर सकता है वो जल्दी से प्लीज शेयर, ठीक है। अंशुमन सर प्लीज, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी। एक्चुअली Yes, sir. आपके अंदर क्या थॉट्स है, आपके अंदर हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। उन थॉट्स को कैसे बाहर निकाला जाए, आज का सेशन मेरा इसी के ऊपर है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक 5 मिनट लगेंगे इस पोएम को लिखने के लिए। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर सेल्फ, है ना। उसमें लिखना है आपको, उसमें डिस्क्राइब योर सेल्फ पे आपको क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। उसमें आना चाहिए चाइल्डहुड होम, डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स, चाइल्डहुड होम, अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ में या कॉलेज में। I am from where, describe your family. I am from where, describe your sound around your home. I am from where, describe sights around your home. I am from where, describe smells around your home. मीन्स ये चीजें आनी चाहिए कि चाइल्डहुड होम कैसा था, कहाँ था आपका, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे थे, आपकी फैमिली मेंबर कैसे थी, कौन थी, आपके घर के आसपास कुछ साउंड क्रिएट होता था क्या, और आपके घर के आसपास कोई खुशबू आती थी या फिर स्मेल आती थी क्या, ठीक है। या फिर उसके साथ आपको जोड़ना है आपका बेस्ट अचीवमेंट या बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबको ट्राई करना है। अंशुमन सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्टिविटी करानी है स्टूडेंट से, है ना। Right, तो right, sir. आप भी कीजिए सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहे तो एक छोटी सी पोएम लिख सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। Right, sir. आपके अंदर से थॉट्स निकालने हैं कि आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड होम। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फैमिली। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब साउंड अराउंड योर होम। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब साइट्स अराउंड योर होम। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब स्पेस अराउंड योर होम। I requested all the participants, please participate actively. Please इस वाली एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। हो सकता है कि जिसने कभी कुछ पोएम नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हो, किसने पोएम जिस आंसर किसी क्वेश्चन के आंसर के अलावा अभी तक कुछ सोच थॉट प्रोसेस से कुछ लिखा नहीं हो, उसको भी आज लिखना पड़े, और शायद वो लिखने के बाद बहुत अच्छा लिखने लग जाए आज के बाद। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से कुछ आज मेरी इस सेशन में कुछ ऐसा इन्वेंशन हो जाए कि जिसने कभी नहीं लिखा हो उसको भी कंपल्शन हो के लिखना पड़े, और आगे चल के वो बहुत अच्छा लिखने लग जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत इजी है। जो कंटेंट है वो अपनी लाइफ से ही लेने, अभी तक की जो लाइफ है आपने बचपन से जो अभी तक जो सीखा है उससे ही करने। तो कोई किसी स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट कर लिया है तो वो शेयर कर सकते हैं हमसे। कोई भी शेयर कर सकता है, एनीवन, जस्ट
अंशुमन सर, Any student आपने लिखी है who had, अंशुमन सर? आप भी शेयर कर sir, I am writing. सकते। ओके ओके। छत्रपाल, कोई भी स्टूडेंट शेयर कर सकता है जैसे भी चाहे। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फ्रेंड। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर फैमिली। ठीक है, मीन्स थॉट्स कहीं ना कहीं अपने अंदर ही है, उनको निकालना है। ये एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग है, उसको निकालो कैसे भी कर। महीन, महीन आपने लिखी है? यस यस सर, लिख रही हूँ मैं। ओके। छत्रपाल? यस सर, मैं लिख रहा हूँ सर। ओके ओके, गुड। कंटेंट तो समझ में आ गया आपको कैसे लिखनी है? नहीं समझ में आया तो बिलाल, अनुषा, अनुषा इज देयर? दृष्टि, दिवजोत सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र, काव्या साकला, काव्या साकला, काव्या साकला, my daughter name also is Kavya Sakla. Here is Kavya Sakla. Kavya Sakla. मिताली, पल्लवी, पलक, Nikita, just mute yourself and interact with me. Pallavi, Palak, Sahil, अंशुमन सर, Yes, sir. ये सब सुन पा रहे हैं या सिर्फ जस्ट ओपन करके बैठे हैं क्या? एक बार पता लगा पाएंगे आप? Sir, they all are listening. I Okay, just they are try. listening. I think so. They They have. all are Like, listening what is actually, happening. my session is one-to-one session. जो sir students are interact with me, it's better for me. Maximum students will take with me. Students, please interact. I know you are listening everything and you are watching the presentation. Please, it's a request for my side to interact with our today guest and do participate in the events which are happening one by one. Dipanshu, Devendra Singh, Divjot Singh, महीन आपने Don't लिखी है? hesitate. हाँ, कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी आपने लिखा है, कुछ Don't. भी लिखा है, ये प्लेटफॉर्म है आपका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप आपके घर पे बैठे होंगे, घर पे बैठ के आपको कुछ लिखना है, कुछ शेयर करना है, यहाँ पे बिल्कुल शर्म करने की जरूरत नहीं है, ओपन है बिल्कुल। तो आप ज्वाइन कीजिए इसको प्लीज। किसी कोई एक शेयर करना चाहता है जिसने लिख ली हो, प्लीज। छत्रपाल, महीन, लोकेंद्र, राहुल कुमार, जगदीश चंद्र सेन, लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो गए। तो मैं चाहूंगा कि कोई एक या दो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमने लिखा है तो शेयर करना चाहते तो प्लीज शेयर कीजिए, कोई भी शेयर कर सकता है। आपने लिखी है अंशुमन सर? Sir, yes, sir. तो लिखा है तो आप बता दीजिए सर थोड़ा सा। Sir, I basically belongs to the Jammu city. Okay. So in my street, I had many friends. Try to speak in the form of poem. In the form of poem. Yes. जैसे पोएम बोलते थे ना अपन बचपन में। ठीक है, I am a poem, इस तरह।
I belong to the Jammu city. I had many friends in my city. So there are 5 members in the family. So it is not a poem, it is just a writing skill. Okay, just say so. Okay. महीन और कोई? छत्रपाल? सर और कोई किसी ने लिखी है? ओके सर। बेसिकली सर एक्चुअली मैंने कल सर से भी बात करी थी कि आज का सेशन रहेगा पूरा एक्टिव इंटरेक्शन बेसिस रहेगा, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ाऊं क्योंकि एक्टिविटी भी असाइनमेंट्स भी है स्टूडेंट्स के लिए कुछ, तो वो आगे है तो असाइनमेंट्स आएंगे वो करने पड़ेंगे उनको, इस तरह से है। तो रैंडमली आप कैसे आप इन स्टूडेंट से प्रेजेंट कैसे लगवाए सर? जैसे कि मुझे किसी भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है तो उससे मैं कैसे कर पाऊँ? अंशुमन सर। सर you just call their name. जिस मैं कॉल कर रहा हूँ ना, जैसे कि अंकित शर्मा, अनुषा रैना। अंकित शर्मा एंड अनुषा रैना, अब आपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अंकित शर्मा एंड अनुषा रैना, माइक को अनम्यूट कीजिए। कोई नहीं सर। ओके सर। महीन आपने लिखा है? यस सर, मैं लिख रही हूँ। चलो प्लीज टेल मी। सर लिख रही हूँ मैं अभी। आपने जितना भी लिखा है प्लीज शेयर। सर इट वाज नॉट सो ब्यूटीफुल और फैंसी, पहला ही है। आई एम फ्रॉम वेयर, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड होम। Yes. It was not so beautiful or fancy, but I had my most beautiful memories there. दूसरा, I am from where, describe your friends. Friends were more like family to me. We used to play day and night. Okay. तीसरा, I am from where, describe your family. Okay. Family was always very supportive. Okay. They used to give me every little bit I was dreaming of. Okay. सर बस इतना ही लिखा अभी। Okay, thank you very much. Good try. छत्रपाल सिंह आपने लिखा है? छत्रपाल? नहीं सर, वो नहीं हो पाया वो। जो भी आपने सोचा है आप बता दीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप कहाँ से थे, इस तरह से कुछ। वरुणी, वसीम। ओके ओके। आपने कभी ऐसे मेरा कहने का मतलब है, अगर एक और जो एक्टिविटी में जो आना चाह रहा है उसमें क्या है कि आपने कभी ऐसे अभी जो हमारे ग्रुप पे है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी है, टॉक टू स्ट्रेंजर, जिससे कभी बात नहीं करी हो? क्या अभी आप 2 मिनट में कर पाएंगे इससे कोई रैंडमली, जैसे कि अभी अपने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनमें से आपने किससे बात नहीं करी है, उससे बात करना है? छत्रपाल सिंह, ऐसा कौन है यहाँ पे अपने ग्रुप में जिससे आपने बात नहीं करी है? महीम, लोकेश, जिससे आप बात करना चाहते हो? ये भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि जब आप कुछ, हाँ छत्रपाल सुन पा रहे हो? यस सर। ऐसा आपको कोई पर्सन ढूंढना है इसमें जिससे आपने कभी बात नहीं करी और उससे कुछ बात करना है, या फिर आप उसको फोन लगा के भी बात कर सकते हो, ठीक है? सर जितेंद्र मेनारिया। जितेंद्र मेनारिया। जितेंद्र मेनारिया, आप सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। जितेंद्र मेनारिया, छत्रपाल आपसे बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट कीजिए आप एक दूसरे के बारे में। हाँ सर। आपने जितेंद्र मेनारिया से कभी बात नहीं करी है? नो सर, ये अभी वॉलेट के बारे में बस ये अभी बात करी। अच्छा चलो ठीक है। जितेंद्र मेनारिया, आप अब दोनों कम्युनिकेट करना है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो, उसके बारे में पूछना है, जनरल इंट्रोडक्शन। हाँ सर। छत्रपाल स्टार्ट करो आप। हेलो।
चेतन में। हेलो हेलो छत्रपति। यस। हेलो। कहाँ से हो आप? मैं चित्तौड़गढ़ से। आई एम चित्तौड़गढ़। मैं उदयपुर से हूँ। Okay. आप स्टूडेंट हो या जॉब नहीं करते हो? नहीं, मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैंने डिप्लोमा अभी क्लियर किया है, मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल। यस। तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी प्रेजेंट में बीटेक का ही है बस। अच्छा, और मैंने भी डिप्लोमा कंप्लीट किया है जस्ट इसी ईयर। अच्छा, कहाँ से? यहीं चित्तौड़गढ़ से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज बोजुंदा। अच्छा एक ही जगह से लग रहे हो। तो मैंने तो आरआईटी से। आपने आरआईटी से किया है? नहीं, मैंने यहाँ चित्तौड़गढ़ बोजुंदा से किया है। आपने प्राइवेट से किया है क्या? नहीं, मैंने वहां से किया, लेकिन ठीक है। शायद एक्स। ओके ओके, थैंक यू। ऐसा कोई पर्सन हो जो जम्मू से हो और उदयपुर के किसी से बात करना चाहते हो? महिम। यस सर। यस सर, ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है आपको यहाँ पे जिनसे आप स्ट्रेंजर है, टॉक टू ए स्ट्रेंजर, जिनसे आपको बात करनी है? यस सर, बहुत सारे हैं। टॉप पे मैं देख रही हूँ आकिब हुसैन, इनको मैंने नहीं देखा है कभी, ना मैं जानती हूँ। आकिब हुसैन, आकिब हुसैन, आप सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, महिम आपको जानती है? आप कहाँ से हो? महिम कहाँ से हैं? आप दोनों इंटरेक्ट कर पाओगे? जी सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। हाँ। यस आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? कश्मीर से। अच्छा अच्छा, मैं भी कश्मीर से हूँ। तो मैंने अभी आपका एक आइडिया देखा अबाउट वॉलेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी गुड। और आप क्या कर रहे हो बस प्रेजेंट? आजकल। जी, आप किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो? कहाँ पढ़ रहे हो? किस कॉलेज? या फिर आप जॉब कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, मैं 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ ICT जम्मू। अच्छा, सेम कॉलेज। Yes. मैं YCT में 7 सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। जूनियर ही है ये तो आप। अच्छा सर, आई डोंट नो हिम। अच्छा, चलो ओके ओके, गुड गुड गुड। तो अब आप आप इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके ओके, थैंक यू। अब आप जब कॉलेज जाओ तो आप इनसे जरूर मिलना कि आपका जो आप जब कॉलेज जाओ महिम और आकिब, तब जरूर मिलना आप एक दूसरे से, है ना? कि हमने उस देखा ऑनलाइन होगा सर, लेकिन देखा होगा सर, लेकिन हाँ, बाय नेम नहीं जानते जानते नहीं है होंगे। सर। हाँ, बाय नेम नहीं जानते होंगे। यस सर। गुड गुड गुड। तो अभी तक का सेशन कैसा जा रहा है आकिब? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो मेरी अच्छा रिक्वेस्ट है कि आपके 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोले कि पार्टिसिपेट करें। अच्छा है, ठीक है। और कोई ऐसा मिल रहा है छत्रपाल, और कोई ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है जो आपको नहीं जानता है, किससे बात करना चाहते हो आप? नहीं, बाकी सबको जानते हो? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, तो हम सेशन को आगे ले जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ अब अंशुमन सर इज देयर? Yes, sir, I am here. ओके ओके सर, एक्चुअली क्या है कि मुझे एक ग्रुप बनाने, 9 ग्रुप बनाने हैं, और मुझे 9 ग्रुप बनाने हैं अल्फाबेटिकली। या फिर स्टूडेंट्स को मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम मुझे अलॉट करनी है, तो आप मेरी हेल्प कर पाएंगे प्रॉब्लम को अलॉट करने में? Yes, sir, definitely. जितने भी Yes, sir, definitely. हाँ सर, तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट जो हैं जिनका नेम जो है वो ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, उनके लिए। हेलो? Hello, sir, you are audible. हाँ सर, जितने भी स्टूडेंट जैसे हैं जिनका जो नाम जो ABCD, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम नंबर
ले सकते हैं G1 या G2, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम, जिनका नाम जो है ABCD से स्टार्ट होता है, जिनका जो अल्फाबेट नाम ABCD से स्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम नंबर 1, जिसका नाम, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका स्टेटमेंट है हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। और दिस सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू इम्प्रूव एंड इनोवेट लेक्चर्स बाय फैकल्टी मेंबर्स। आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हो, फैकल्टी मेंबर्स को इनोवेटिव लेक्चर, ये सब आपके ऊपर है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस, एंड सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू इम्प्रूव एंड इनोवेट लेक्चर्स बाय फैकल्टी मेंबर्स। ये दोनों प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम जो है एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है, ये दोनों प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम लेना है और उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनका नाम जो है अल्फाबेट ABCD से स्टार्ट होता है, या A से स्टार्ट होता है, या B से स्टार्ट होता है, या C से स्टार्ट होता है, या D से स्टार्ट होता है। ठीक है अंशुमन सर, आप हेल्प करेंगे मुझे? राइट सर। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की, हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ABCD, राइट, जिनका नाम ABCD से स्टार्ट होता है वो दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम ले सकते हैं, और जिनका नाम जो है EFG से स्टार्ट होता है, EFG से स्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 लेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है हाउ टू इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट रिगार्डिंग डूइंग प्रोजेक्ट वर्क एंड स्टार्टअप्स। हाउ टू इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डूइंग प्रोजेक्ट वर्क एंड स्टार्टअप्स। ये लेंगे EF, है ना, EFG 3 अल्फाबेट लेटर हैं EFG। ये प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 में से कोई एक प्रॉब्लम ले सकते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डूइंग प्रोजेक्ट वर्क एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, और 4th प्रॉब्लम है हाउ टू कंट्रोल एडिक्शंस ऑफ ड्रग्स अमंग स्टूडेंट्स। हाउ टू कंट्रोल एडिक्शन ऑफ ड्रग्स अमंग स्टूडेंट्स। वो अल्कोहल भी हो सकता है, सिगरेट भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो ड्रग्स। मैं बहुत बड़े ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल आप स्मोकिंग करते हो या फिर ड्रिंकिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो ड्रग। तो हाउ टू कंट्रोल एडिक्शन ऑफ ड्रग्स अमंग स्टूडेंट्स, ये दोनों भी प्रॉब्लम है। तो जो EFG है उनको ये दोनों प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम लेनी है। ठीक है, तो जिनका नाम HIJK से स्टार्ट होता है, HIJK से स्टार्ट होता है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम लेनी है प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 में से कोई एक प्रॉब्लम लेनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग नॉन टीचिंग, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैंडल्ड बाय फैकल्टी मेंबर्स। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग नॉन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैंडल्ड बाय द फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, आप क्या सोचते हो, ये इनके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक फैकल्टी मेंबर के पास? हाउ टू कंट्रोल एग्जाम एंग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट। एग्जाम का जो डिप्रेशन रहता है, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, उसको स्टूडेंट कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो अल्फाबेट है ना HKL है ना, वहां तक ले ले इसको। ठीक है, उसके बाद ABCDEFGI तक हो गया। KLMN उनको प्रॉब्लम नंबर 7 लेनी है, What should be the criteria for performance increment of faculty members by the education institute। ये आपको सजेस्ट करना है, ये आपके लेवल का नहीं है, ये एक फैकल्टी सोचता है। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट सोचता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, आपका कॉलेज ये सब चीजें सोचता होगा, कॉलेज के ओनर ये सब चीजें सोचते होंगे, लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग सजेशन क्रिएट करने। ठीक है, What should be the criteria for performance increment of faculty members। MNO है ना, NOPQR उनको प्रॉब्लम नंबर 8 लेनी है, हाउ टू ओवरकम यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग द स्टूडेंट्स। हाउ टू ओवरकम द सोशल मीडिया अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, और रिमेनिंग जो लेटर्स बचे हैं उनको लेनी है, हाउ टू ओवरकम ईटिंग फास्ट फूड बाय द स्टूडेंट्स। हाउ टू ओवरकम ईटिंग फास्ट फूड बाय द स्टूडेंट्स। और एक और बात मैं कह दूं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मिस कर गया है कि कौन सा अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मुझे लेना है, तो रेंडमली आप कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो, कोई भी स्टूडेंट रेंडमली कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सोचते हो वैसे क्या सोचते हो उसके बारे में वो करना है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, वो प्रॉब्लम है, आपको आज के सेशन से जुड़ना है, आपके आज के सेशन से जुड़ना है,
आप पहले प्रॉब्लम ध्यान से सुन लो। अगर अल्फाबेटिकली आप नहीं कैच कर पाए तो आप रैंडमली जितने भी, अंशुमन सर आप हेल्प कीजिए Yes, थोड़ा sir. सा। जितने भी स्टेटमेंट है, 9 स्टेटमेंट है, 9 स्टेटमेंट में से कोई भी Right. स्टूडेंट जो है एक रैंडमली कोई एक स्टेटमेंट उठा ले, एक प्रॉब्लम उठा ले, उस प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन Right. जो है बताना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो Right, है sir. वो हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस। सेकंड है हाउ टू improve and innovative lectures by the faculty members, how to influence students regarding doing project works and startups, how to control addictions of drugs among the students. What is your opinion regarding non-teaching administrative work handled by the faculty members? This is also a major problem. इसमें टीचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत होता है। ठीक है, आप Right. स्टूडेंट्स भी आप देखते हैं। ठीक है, हाउ टू Right, कंट्रोल sir. एग्जाम डिप्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ शुड बी द क्राइटेरिया परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्या होना चाहिए। ये आपको एज ए फैकल्टी होके, एज ए कॉलेज का ऑनर होके स्टूडेंट्स को सोचना है। आज स्टूडेंट्स की बारी है। हाउ टू ओवरकम यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग द स्टूडेंट्स, जो एक कॉलेज मैनेजमेंट सोचता है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स के अंदर सोशल मीडिया कैसे कम किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है, हाउ टू ओवरकम ईटिंग फास्ट फूड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, इन सब को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो रैंडमली जो है आपको कोई भी एक प्रॉब्लम, अगर अल्फाबेटिकली आप कहीं स्किप कर गए तो आप कोई भी एक रैंडमली एक प्रॉब्लम उठाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने सुनी हुई है, ये वाइबल है, ये प्रॉब्लम वाइबल है, These are the most ये प्रॉब्लम डिजायरेबल है, common problems. कॉमन प्रॉब्लम है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ आप कोई फैब्रिकेट नहीं कर पाएंगे। ये मैं यहाँ अंशुमन सर, मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये प्रॉब्लम एक पेपर पे लिख के हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोटोटाइप या फैब्रिकेशन नहीं कर सकते। कि मेरे सेशन में Right, sir. स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ पॉइंट शेयर कर लेंगे। दैट इज अ वेरी बिग टास्क फॉर देम, एंड मेरा आज का सेशन यही कंप्लीट हो जाएगा कि यहाँ से वो कुछ सजेशन दे इसके Right. रिगार्डिंग, Definitely, sir. है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम Sir, है और वही ये लोग करते हैं अंशुमन सर। right. इन्हीं से ही इन्हीं से की ये प्रॉब्लम है, relate कर रही है problems. इन्हीं से रिलेट कर रही है और इन्हीं को इसका आंसर देना है सभी को, Right. है ना। तो आप भी एक प्रॉब्लम आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो आप भी उसके कुछ सोल्यूशन निकालना चाहे तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहले सभी को स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट वहां से करना है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस स्लाइड पे वापस आ जाऊंगा। सबसे पहले जो पहली मेरी स्लाइड थी, आपको वो पहली जो स्लाइड थी मेरी, क्या थी सबसे पहली जो स्लाइड थी, ये थी वाइबिलिटी। ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई, ये वाइबल है या नहीं वाइबल है, ये डिजायरेबल है या नहीं डिजायरेबल है, ये फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। तीनों ही कॉम्बिनेशन है इन सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, ये तीनों ही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम में। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देना है मुझे आज। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम पे आपको जोर लगाना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको डिफाइन करना है, कुछ आइडिया देना है आपको, फिर उसको डिलीवर करना है कि कैसे इसको डिलीवर होगा। तो ये दोनों वाइबिलिटी, डिजायरेबिलिटी और फिजिबिलिटी, उसको इंक्लूड करना है। देन हियर, क्रिएट एंड डिलीवर, इसी तरीके से आपको पूरी तरह से एक परफॉर्मा बनाना है। पेपर पे बनाना है तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो कुछ कंटेंट, वो कंटेंट आप मुझसे शेयर करेंगे और मैं वापस उस प्रॉब्लम से आ जाता हूँ। अंशुमन सर, आप भी एक प्रॉब्लम को उठा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और अगर Right, रॉबिन sir. सर हैं तो रॉबिन सर, दिनेश सर अगर अटेंड कर रहे हैं सेशन तो वो भी कोई प्रॉब्लम उठा सकते हैं। तो अगर वो हैं अवेलेबल तो वो प्रॉब्लम को उठा ले। तो प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, हाउ टू इम्प्रूव। आप कोई भी रैंडम एक प्रॉब्लम ले सकते हैं। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव and to innovate lectures by the faculty members, how to influence students regarding doing project works and startups, and how to control addiction of the drugs among the students. What is your opinion? Okay, how to control the stress of the examination among the students, how to overcome use of social media among the students, how to overcome eating fast food by the students. Anshuman sir, are you there? Yes, sir, I am here.
you can also select a problem. ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या बनाना है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये सर्कल क्या शो कर रहा है। आप जब भी आपने कोई भी एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करी, ये सर्कल शो करेगा कि प्राइमरी उससे इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है, स्टूडेंट खुद उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। जितनी भी 9 प्रॉब्लम मैंने बताई है, सबसे मेजर जो है प्रभावित कौन हो रहा है, स्टूडेंट हो रहा है, तो प्राइमरी सर्कल में स्टूडेंट आएगा। सेकेंडरी में आएगा पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें प्राइमरी जो है नुकसान किसका हो रहा है, इस सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर इन सब प्रॉब्लम का एक ही सबको नुकसान हो रहा है, वो है स्टूडेंट को। और दूसरा है सेकेंडरी, वो है पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं। तीसरा हो रहा है सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को। ठीक है, वर्ल्ड को। अगर स्टूडेंट जो है एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा तो वर्ल्ड को, सोसाइटी को नुकसान है। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रभावित हो रहा है वो स्टूडेंट खुद हो रहा है उसके करियर से। दूसरा हो रहा है उसके पेरेंट्स और उसके फैकल्टी मेंबर्स, सेकेंडरी सर्कल में ये आएगा। और थर्ड सर्कल में आएगा सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड, जो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों सर्कल पे आप बनाओगे, तीनों सर्कल से रिलेटेड है। तो आप जो है इसको बनाने के लिए आप एक क्वेश्चनर भी बना सकते हैं। क्वेश्चनर बना सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ये इससे दूर किया जा सकता है। जैसे कि चीटिंग की प्रॉब्लम ले ली, या स्टूडेंट में ड्रग्स की प्रॉब्लम ले ली, या स्टूडेंट या फिर सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है स्टूडेंट्स में, वो वाली प्रॉब्लम ले ली। तो उनका आप कैसे बनाओगे, आप आपके किसी फ्रेंड्स को फोन लगा के पूछो, या फिर पेरेंट्स को फोन लगा के, किसी टीचर को फोन लगा के पूछ लो कि वाकई में सर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, और क्या। एक क्वेश्चनरी बना लो आपके हिसाब से, 5 या 10 क्वेश्चन की एक क्वेश्चनरी बना लो। ठीक है, और उन क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आप खुद लिखते जाओ। ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाई, ठीक है, उसके सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आपने कि स्टूडेंट में अगर ड्रग्स एडिक्शन है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, प्राणायाम करके दूर किया जा सकता है उसको। ठीक है, उसको मोटिवेट करके दूर किया जा सकता है कि ये आपके लिए खराब चीज है, ये मनी वेस्ट करती है, ये आपका करियर वेस्ट कर रही है। ठीक है, आपकी एज कम है, ये बहुत आगे जाके बहुत नुकसान करेगी। ठीक है, तो आप क्या सोल्यूशन आप उसके लिए बना सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर बना सकते हो आप। आपके आसपास से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है आप खुद ऑब्जर्वेशन करके आप एक कलेक्शन कर सकते हो उसमें कि क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आपकी। हाँ, अगर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है तो क्या है, क्यों, क्योंकि हर एक पेरेंट्स ने अभी तो बिल्कुल जो है हमारा बिल्कुल सिचुएशन चल रही है कोरोना वाले, तो हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मोबाइल दिलाया हुआ है क्लासेस अटेंड करने के लिए, और उसका वो यूज कर रहा है। मीन्स सोशल मीडिया वाला बताया है, वो सोशल मीडिया ज्यादा देख रहा है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस है कि क्योंकि आज हर एक स्टूडेंट के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। ठीक है, तो वो उसका मिस यूज कर रहा है या यूज कर रहा है, वो उसका नॉलेज अपग्रेड कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा बिजी है, तो उससे कैसे ओवरकम करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, फिर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कंपाइल करना है, उन फाइंडिंग्स को कंपाइल करना है, उनको इंटरकनेक्शन करना है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट निकला है कि हाउ माइट बी हेल्प और क्रिएट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। जो भी आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है उसके एक स्टेटमेंट बनाओ आप लोग। जो भी आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है, 9 प्रॉब्लम्स है, और 9 प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट आपको बनानी है। वो प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बनानी है। हाउ माइट बी ब्लैंक बाय ब्लैंक सो दे कैन ब्लैंक। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम उठानी है, उन प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, एक आप क्वेश्चनर बनाओ, उनका इंटरकनेक्शन करो सोसाइटी से, फाइंडिंग्स लाओ। ठीक है, और उसके स्टेटमेंट बनाओ। ये 3 काम आपको करने हैं, और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये 9 प्रॉब्लम्स आर देयर। जो 9 प्रॉब्लम है वो है हाउ टू स्टॉप चीटिंग इज डन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, हाउ टू इम्प्रूव and to innovate lectures by the faculty members, how to influence students regarding doing the project work and startup, how to control addiction of drugs among the students, how
is your opinion regarding non-teaching administrative work handled by the faculty members? How to control exam depression and anxiety among the student members? How should be the criteria performance increment of faculty members by the education institute? How to overcome use of social media among the students? How to overcome eating fast food by the students? ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो काम अंशुमन सर आपने लिए कोई प्रॉब्लम? Robin sir? My problem is I had taken the problem number 1. Okay. How to stop cheating is done by students in examination. तो सर इसकी फाइंडिंग्स बनानी है. ये वाइबल है, डिजायरेबल है और फिजिबल ही है. तो आपको इस पे काम करना है, इसका क्वेश्चनर तैयार करना है और मैं आपको शेयर करना है उसके रिगार्डिंग. ठीक है सर? ठीक है सर. Robin sir is there? Robin sir? ठीक है, तो स्टूडेंट ने सिलेक्ट करी है प्रॉब्लम. जितेंद्र मिनारिया आपने सिलेक्ट करी है प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है. आपने कोई भी प्रॉब्लम ली है, उन प्रॉब्लम में से आपको एक प्रॉब्लम यहाँ लेनी है. वसीम, आकिब हुसैन, Akib Hussain is there. Akshit Verma, Ankit Sharma, Anusha, Mahim Malik is there. यस सर. आपने प्रॉब्लम लिया, कौन सी प्रॉब्लम ली है? सर मैंने ये ड्रग एडिक्शन वाला लिया है. अच्छा. स्टूडेंट कंट्रोल. आपको एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चनर बनाना है, उनकी फाइंडिंग्स भी बनानी है और आपको मुझसे शेयर करनी है. पलक. ओके सर. ओके. दिनेश, महक, मिताली, निकिता परिहार. स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन है. आप मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप जो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज इंटरेक्ट. छत्रपाल. यस सर. आपने कौन सी प्रॉब्लम ली है? सर पहला वाला पॉइंट ही लिया. चीटिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो? यस सर. ओके करो. बिलाल रजमान, आकिब हुसैन. यस सर. आकिब. यस सर. हाँ, आपने कौन सी प्रॉब्लम ली आकिब? सर फर्स्ट वाला. अच्छा, आपने फर्स्ट वाला लिया है. ठीक है, ओके गुड. जितेंद्र मिनारिया. यस सर. आपने कौन सी प्रॉब्लम ली है? सर ड्रग्स एडिक्शन. अच्छा, आपने ड्रग्स वाली ली है. दीपांशु केट. ऋतिक. Yes, sir. Ritik is there. दीपांशु केट. हाँ, आपने कौन सी प्रॉब्लम ली है दीपांशु? Sir, drug addiction. अच्छा, ड्रग एडिक्शन. गुड गुड गुड. अमीर हुसैन, आप एक्सरसाइज करो उसके ऊपर और फिर आपको शेयर करना है मुझसे, है ना? आकिब हुसैन, जितेंद्र मिनारिया. मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, सिर्फ 10 मिनट दूंगा. जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए फटाफट उनको प्रिपेयर करो, फिर हम शेयर करते हैं उसको. मिताली बख्शी, महक पंडिता, मोहसिन, पलक, रिया शर्मा, प्लीज इंटरेक्ट. आपके रिगार्डिंग की प्रॉब्लम्स है, मैं स्लाइड वापस चला दूंगा प्रॉब्लम का. सीरत इकबाल. ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है.
हाँ, कौन है? कौन है? हाँ, हेलो, दिनेश, दिनेश सर। अंशुमन सर, यस सर। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो स्टूडेंट से बोलिए कि इंटरेक्ट करे प्लीज। एक मिनट सर, हाँ, I will text them in WhatsApp group. वसीम, Sir, आपने क्या प्रॉब्लम ली है वसीम? sir, how to overcome eating fast food by the students? ओके, गुड गुड। आप इस पे काम कर रहे हो? हाँ सर, मैंने सर टेक्स्ट किया था इसमें चैट में। नहीं, आपको मुझसे शेयर करना है इसे, है ना? शेयर चैट में नहीं, आपको मुझको फिजिकल, आपको मुझे इंटरेक्ट करना है मुझसे ना। तो आप आपका अनम्यूट कर दो और आप आपका वीडियो भी ऑन कर दो, आप मुझसे इंटरेक्ट करो। आपने फाइंडिंग्स कर ली उसकी, उसके बारे में क्या सोचा आपने? सर अभी फिर बना रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, 5 मिनट और दूंगा मैं आपको उसके। फिर क्या है कि स्टूडेंट जो है वो शायद उनको ऐसा वसीम इज देयर, देवेंद्र, देवेश, जाफरी से है, निहारिका, तानिया। द प्रॉब्लम इज देयर। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मैं वापस शेयर कर रहा हूँ आपसे। How to stop cheating is done by student in examination. Where we, how to improve and innovate lectures by faculty members. How to influence students regarding doing project work. How to control addiction of drugs among the students. What is your opinion regarding non-teaching and administrative handle by the faculty members? How to control exam and anxiety among students? What should be the criteria of performance increment faculty members by the education student? How to overcome use of social media among the students? How to overcome the eating fast food among the students? ठीक है, और उसके एक स्टेटमेंट बनानी है आपको, उसके कुछ क्वेश्चनर बनाना है, उसके स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, और फिर आपका मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। तो ये इनोवेशंस जो होता है, आपको है कि क्या होता है, मैंने बताया आपको, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ही आपको पूरा काम करना है कि ये सब चीजें है, प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही इनोवेशन है। ये मैंने प्रॉब्लम जो है आज इंटरेक्टिव सेशन में ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपसे कोई प्रोटोटाइप नहीं बनवा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एक आपके थॉट्स के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर निकल जाएंगे तो अपने आप में इनोवेशन हो जाएगा। तो इनोवेशन किससे रिलेटेड है? वो सबसे पहले होना चाहिए वाइबल, वो वाइबल होना चाहिए, वो डिजायरेबल होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए, वो यूजेबल होना चाहिए, वो वैल्यूबल होना चाहिए। तो इन सब, ये जितने भी सर्कल्स बने, ये सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने किसी एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना लिया, तो वो अपने आप में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इनोवेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनोवेशन जो है वो वाइबल होना चाहिए। वाइबल का मतलब मैंने आपको बताया कि वो वाकई में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए और उस पर काम होता है, और डिजायरेबल होना चाहिए, मीन्स वो सही में उसकी डिमांड है या नहीं, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी हर इंस्टीट्यूट को, हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को डिमांड है उस चीज की, ठीक है। वो फिजिबल हो सकता है, वो सब चीजें फिजिबल हो सकती है, कुछ भी नहीं है उनको फिजिबल इनफिजिबल हो, वैसे कुछ भी नहीं दिखता उसमें, ठीक है। वो पॉसिबल भी है, वो यूजेबल भी है, वो वैल्यूबल भी है, जितनी भी चीजें हैं जो मैंने प्रॉब्लम बताई, ठीक है। तो ये आज जो आप सोल्यूशन निकाल दोगे तो इन प्रॉब्लम्स के लिए वो एक इनोवेशन हो जाएगा। तो आज ही आपने इन प्रॉब्लम्स
का सोल्यूशन निकाल दिया, मतलब उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपने इनोवेशन कर दिया आज ही आपने, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सब स्टूडेंट जो है कोई ना कोई, हाँ हाँ सर बोलिए। Dr. Vijender sir, sorry to interrupt you. यस सर। There is some connectivity issue with Dinesh sir and Robin sir. ओके सर। They just called me. So there is some kind of connectivity issues they are facing ओके in the town. So students are also facing that kind of connectivity issues. They are texting me. ओके They are not. Your voice is maybe not audible to them, I think. ओके They are messaging me again and again. So they are requesting to conclude the session. ओके सर, तो अभी इसको सेशन Because को सर कंक्लूड कर देते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि ये कुछ स्टूडेंट जिन्होंने कोई सोल्यूशन निकला है वो एक दो स्टूडेंट्स कुछ इंटरेक्ट कर ले, जितना भी निकला है आप ही कर लिए सर। पहले सबसे पहले आपने क्या सोल्यूशन सोचा उसके लिए, आपने जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करी थी उसमें उसके लिए। हेलो। Hello. हाँ सर, आप ही सबसे पहले आप ही शेयर कर दीजिए। So most are facing some issues, technical issues. So we are, sir, request you to kindly conclude the session within minimum possible time. Okay, okay. Okay, anyone can share the solution of the problem? Okay. Sir, you are not audible to them also. They are texting me Okay, okay. again and again. WhatsApp. Okay, okay, sir. Okay, sir. So I'm sharing my video to my PPT to all, and thank you for the session. And I hope कि session will be more interactive. If physical interaction will be there, तो हम अच्छे से वो session बना पाते, ठीक है। लेकिन online session है, शायद इसमें इस चीज से आपने कुछ सीखा हो, I hope, ठीक है। Thank you, योगानंदा कॉलेज। Thank you. अनूप कुमार, Thank you very much, sir. थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Can we This is close it? really a wonderful session on. हाँ No, thank you, sir. This is really a wonderful session on entrepreneurship. So we had really enjoyed the whole session, but due to technical snag, there is some issues students as well as faculty is facing right now. So ओके सर, ओके, that's why we ओके सर, have to conclude. ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। Thank you for being. थैंक यू सर। Okay. कैन आई लैप द मीटिंग सर? Yes, sir.